Hello, everyone, and today we are going to talk about the highly distinguished and well known poet that is T.S. Eliot. Yes, we are going to talk about his prolific and creative works that he has written, and one of the groundbreaking masterpiece was The Wasteland. Yes, Wasteland is a very important and interesting masterpiece, and you will see that it is divided into five sections. And today in this lecture we are going to talk about the very first section, the burial of the dead. Because if you see from your exam point of view, or if you want to know about the wasteland, this modern era poet T.S. Eliot has beautifully described everything, and the different references he has used, the different locations he has used, with the different characters in it. You will see how beautifully he has polished his words and described this wasteland. So, we will take this section, the very first section, and we will take other sections also, but in our other lectures. So let's understand first about the burial of the dead and the key points which are going to come in your examination. So if you have yet not subscribed my channel, I welcome you all to my channel, and please subscribe it, and don't forget to click on the bell icon, as you can be notified when I upload my new video. So moving on to the very important and a masterpiece of T.S. Eliot, The Wasteland. So let's begin. Let us know more about T.S. Eliot. Before we talk about Wasteland, कुछ important points हैं जो हमें T.S. Eliot के बारे में भी पता होना चाहिए. So we'll be talking about T.S. Eliot. First, let me tell you that T.S. Eliot was a poet who never believed that poetry was a spontaneous overflow of powerful feeling. He always said that it is an integration of an emotional and intellectual element. So he, जैसे वर्ड्सवर्थ सोचते थे कि it is a spontaneous overflow of powerful feeling, ऐसा T.S. Eliot नहीं सोचते थे. And he was a very well known figures of modern period and a great author, that is T.S. Eliot. अब इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो his name was Thomas Stearns Eliot, and he was highly influenced by Dante, which can be seen in his work. अगर आपको याद हो दांते का Divine Comedy, he was really very influenced by that work. And if you see, he was also influenced by like Indian literature and philosophy, by Ezra Pound, by metaphysical poets. And I have mentioned here Dante. Why? Because he learned to polish his words from his work. So, and you can see the use of those polished words in his work. T.S. Eliot के works में आपको ये दिखेगा. So he was highly influenced by them. Now, if you see, his poetry represents different themes like new techniques, मेटाफिजिकल इमेजेस कैसी, जैसे जॉन डन यूज करते थे अपनी पोएट्री में. और जो यहाँ पे इन्होंने वेस्टलैंड में अगर आप देखेंगे कि लंदन को अनरियल सिटी बताया है, ठीक है, द बोरिंग लाइफ एंड द अगलीनेस ऑफ दैट सिटी, जो उनको बहुत बोरिंग लग रहा है, क्यों लग रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उनको वो सिटी अनरियल क्यों लग रहा है, और ये जो अनरियल सिटी लिया है, इन्होंने ये रेफरेंस कहाँ से लिया है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो अब अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ अ नोन पब्लिशिंग हाउस, Faber and Faber. The Wasteland is the most epic as well as a masterpiece of modern age and was dedicated to the poet Ezra Pound. ये मत भूलिएगा that he dedicated this work to Ezra Pound. Why? Ezra Pound ने इनकी हेल्प करी थी to conclude
द वेस्टलैंड। जब ये वेस्टलैंड को कंक्लूड कर रहे थे तो एजरा पाउंड ने इनको कंक्लूड करने में हेल्प करी थी। सो ही हैज डेडिकेटेड हिज दिस वर्क टू एजरा पाउंड। अब इस जो लंदन सिटी में दिखाया गया है उसमें जो एक एम्प्टी मॉडर्न सोसाइटी है जिसमें कोई वैल्यूज नहीं बचे हैं, इसके बारे में इन्होंने बात करी है। और जो ये वेस्टलैंड है इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। सो इट इज लाइक द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। अब एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, दैट व्हाइल वी आर लर्निंग दीज 5 सेक्शंस, इसी ऑर्डर में इनको लर्न करिएगा, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है, एक तो ये दे कैन आस्क कि कौन कौन से सेक्शंस इट इज फ्रॉम वेस्टलैंड। तो आपको पहली बात तो सेक्शंस के नेम्स पता होने चाहिए और इनका सीरियल ऑर्डर पता होना चाहिए। सो आई हैव गिवन इट इन अ सीरियल ऑर्डर, इसी ऑर्डर में इसको याद रखिएगा। सबसे पहले द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। नाउ क्विकली, last point, T.S. Eliot is known for his other works like the love songs of J. Alfred Prufrock, Ash Wednesday, The Hollow Men, etc. He is also known as a critic. Now these works we are also going to discuss, but in some other lecture, not in this lecture, because we are going to discuss about the first section of Wastelands. So let's move on. So now coming up with the burial of the dead, and we will see the key points. The opening lines says a lot about this piece of work. जो एलियट हैं उन्होंने अपनी फर्स्ट ओपनिंग लाइन में ही अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ कहा है। एंड एज वी ऑल नो दैट अप्रैल इज अ मंथ of happiness and liveliness, and we can see that Chaucer mentioned in his work General Prologue to the Canterbury Tales, they start their pilgrimage in this particular month. But Eliot has mentioned it as the cruelest month because जो एक spring time है, it brings back to him his memories and the painful past. And if you will see in the other lines that he have described it in different seasons, we will take up this, but इसको याद रखिएगा because this is very important कि Eliot has described April as the cruelest month, and ये reference कहाँ से लिया गया है? चौसर के General Prologue to Canterbury Tales से. These references and locations are very important from the point of view of your net examination. Now looking at the title, The Burial of the Dead is a reference to the Anglican Prayer Book. ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? एंजेलिकन प्रेयर बुक से लिया गया है, एंड दिस इज अ प्रेयर फॉर द बरियल्स, जहाँ पे दे आर टेलिंग ashes to ashes, dust to dust, we are all dust in the end, right? So you should know the title. इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं. The opening lines of the section tell us about the different seasons and about the memories that comes with it. Now you will see that Eliot has described the spring season, or spring season ko he has connected as a painful past that bring back his memories. Then he describes the winter season where his memories are suppressed because of the snow, and suddenly comes the summer season. So all his memories are described with the different seasons that he has mentioned it beautifully. Now coming to the next line, the speaker drift back to the memories of childhood days, the time he spent in Munich. Now if you will see that Eliot has shown different references to various locations in Germany, and there he drifts back to the memories of he drifts back to his childhood memories. He has also given a mention of Mary, that is the cousin of Archduke, and after this mention he changes his location to a stony desert
where land is barren and sterile, and he then moves back to the memory of a Hasidic girl. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने गार्डन का एक नेम मेंशन किया है, हॉफ गार्डन, जो कि म्यूनिच के सेंटर में है। अब ये हॉफ गार्डन क्या सिंबलाइज कर रहा है? जब भी पोएट कोई भी पोएट्री लिखता है, उसका एक एक वर्ड, उसकी एक एक लाइन कोई चीज सिंबलाइज करती है। इट इज द वे वी टेक, राइट? सो हॉफ गार्डन here symbolizes the dead courts of old Europe and the empty charms of aristocratic life. Now the emptiness that he can see, the lost spiritual values and the empty charms of this aristocratic life, there he mentions the Hof Garden. And the name of the lake जो उन्होंने spring season के time पे mention किया है, Starnberg Sea. So these are all important from the point of view कि उनकी locations कहाँ कहाँ उन्होंने mention किए हैं. Then he has taken a mention of Madame Sosostris. ये एक टैरो रीडर हैं और ये रेफरेंस कहाँ से इन्होंने लिया है? आल्डोस हॉक्सली के नॉवल क्रोम येलो से, जहां पे एक फॉर्च्यून टेलिंग फ्रॉड हैं और उनका नाम था सिसोस्ट्रेस. सो ही हैज टेकन मदाम सिसोस्ट्रेस फ्रॉम देयर. नाउ मदाम सिसोस्ट्रेस picked up cards to tell the fortune. जिस टेलर को वो फॉर्च्यून बता रही हैं, it's the very first card that she took was that of the drowned Phoenician sailor, and she depicts his death by drowning. ठीक है, उनकी वो डेथ डिपिक्ट करती हैं by drowning. ठीक है. Now the second card that she takes up is that of Belladonna. Before we move to the second card, प्लीज याद रखिएगा जो इन्होंने ड्राउंड फिनिकन सेलर का कार्ड लिया है, जो फर्स्ट कार्ड उठाया था, ये कहाँ से रेफरेंस लिया है इन्होंने? इट फोरशैडोज द प्लेबर्स जो हु ड्राउन्स लेटर इन द लेटर पार्ट ऑफ पोएट्री. प्लीज याद रखिएगा, प्लेबास. नाउ द सेकेंड कार्ड वॉज ऑफ बेलेडोना, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी. शी वॉज अ लेडी ऑफ रॉक्स. नाउ इसका रेफरेंस इन्होंने कहाँ से लिया है? लियोनार्डोस पेंटिंग मेडोनमे ऑफ द रॉक्स से. याद रखिएगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रीबर्थ एंड प्योरिफिकेशन. अब ये सब चीजें तो जस्ट रिटन वाली हैं, हमको मेन इसका मतलब समझना है कि एलियट बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमने जो एक स्पिरिचुअल वैल्यूज लूज कर दी हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको रीबर्थ लेना है तो फर्स्ट वन शुड बी प्योरिफाइड. सो ही लेज एम्फेसिस ऑन दिस कार्ड फॉर रीबर्थ एंड प्योरिफिकेशन. सो इफ यू सी, क्योंकि यहाँ पे एलियट जब वॉर हो जाता है तो इफ यू सी दैट एक पूरी जेनरेशन पूरी जेनरेशन फिनिश हो जाती है, क्लीन अप हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पिरिचुअल वैल्यूज थे वो सब लूज हो जाते हैं. तो कौन सिखाएगा? तो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज नो स्पिरिचुअल values left, and so Eliot seems to be worried about this waste land. Now moving on to the next card, the man with three staves. अच्छा, the man with three staves ये किस चीज से associated है? It is associated with fisher kings. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेमाइन और ड्रॉट को. उस पर्टिकुलर लैंड में जो एक फेमाइन और ड्रॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो उनका थर्ड कार्ड था, द मैन विथ थ्री स्टेव्स, इसको याद रखिएगा किससे एसोसिएटेड है? फिशर किंग से. ठीक है. अब यहाँ पे पोएट उसके अंदर से विश है कि ये वेस्टलैंड चेंज हो सके, राइट? सो ही इज ट्राइंग to tell his feeling. Now the fourth card is that of the wheel of fortune. कि जैसे हम लोग wheel को spin करते हैं,
that one can bring change in his life. So this is a time for a change by spinning a wheel. नेक्स्ट कार्ड है वन आइड मर्चेंट का. ठीक है, अब वन आइड मर्चेंट क्या दिखाता है? कुछ ग्रीडीनेस, कुछ करप्शन, है ना. सो वन आइड मर्चेंट, आप अपने आप ही समझ जाओ, मर्चेंट है, वन आइड है, तो वो क्या शो कर रहा है? ग्रीडीनेस और करप्शन. अच्छा, अब अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? एक वो ब्लैंक कार्ड भी खोलती हैं. ठीक है, अब ब्लैंक कार्ड में तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो. तो यहाँ पे ही वॉन्ट्स कि जो एक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा था और वेस्टलैंड के लिए. सो पोएट हेयर शो हिज वरीज दैट इफ नथिंग चेंजेस इन द वेस्टलैंड, तब क्या होगा? अगर कुछ वेस्टलैंड में चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं आया, तो क्या होगा? और आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि जो इन्होंने एक फॉर्च्यून टेलिंग का काम किया है, शी कैन ऑल्सो बी रॉन्ग अबाउट हर रीडिंग्स, है ना. वो क्योंकि फेट को तो कंट्रोल कर नहीं सकती है. सो दीज आर द कार्ड्स दैट शी वॉज, वो बराबर उनका फॉर्च्यून बता रही थी. अच्छा, अगर अब हम लास्ट कार्ड देखें, लास्ट कार्ड वॉज द कार्ड ऑफ द हैंग्ड मैन. ठीक है, यहां पे क्या शो करता है? स्पिरिचुअल रीबर्थ, हुडेड फिगर कम्स अगेन. एक और पार्ट में आएगा, ये फिर से आएगा. लास्ट कार्ड जो है व्हाट द थंडर सेड, ये फिर से आएगा. ठीक है, अब लास्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो इट शोज, इट कैन शो अ नेगेटिव इमेज ऑल्सो एंड अ पॉजिटिव इमेज ऑल्सो. ठीक है, जो हैंग्ड मैन है वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता है. हो सकता हो वो जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा रह जाए, या हो सकता है कि देर आर सम पॉजिटिव चेंजेस. सो यू कैन नॉट से, हैंग्ड मैन का मतलब यही नहीं है कि मैन इज गोइंग टू बी डेड. हो सकता हो ही कैन नॉट चेंज हिज पोजीशन, या जो हो सकता हो कि जो वेस्टलैंड है वो जैसा है वैसे ही रहे, जैसी कंडीशंस है उस वर्ड की वो वैसी ही रहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड्स जो मैडम सोसोस्ट्रेस ने उठाए थे. ठीक है, और अब आप देखेंगे इस फॉर्च्यून टेलिंग के बाद एलियट का फिर प्लेस चेंज हो जाती है और ही इज स्टैंडिंग इन अ लंदन ब्रिज. और उसको क्या कह रहे हैं? अनरियल सिटी कह रहे हैं. और वहां पे वो क्राउड में डिस्टेंस से एक अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. उसका क्या नाम है? स्टेटसन. ठीक है, who was with him in the Punic War and asked him about the corpses who were buried during the war. अब now he is asking about the progress कि जो corpse बरी किए गए थे उसमें क्या, what is the progress. जो लंदन को इन्होंने अनरियल सिटी बताया है, वो क्यों बताया है, कहाँ से रिफर किया, हमने पहले भी बोला था. तो ये जो अनरियल सिटी है वो कहाँ से इन्होंने रिफर किया है? चार्ल्स बॉडले के द सेवन ओल्ड मैन, इन्होंने एक लिखा था द सेवन ओल्ड मैन, उसमें इन्होंने अनरियल सिटी टर्म यूज किया था, पर वहां पे इन्होंने पेरिस के लिए यूज किया था. सो एलियट हैज बोरोड this term, the unreal city, from there for his wasteland. So I hope you're clear with the poem, what it is all about, different sections जो होता है. and सबसे पहले पार्ट में वो डिफरेंट सीजन्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद ही ड्रिफ्ट बैक टू द मेमोरीज. थर्डली मैडम सोसोस्ट्रेस आ जाती हैं, उसके बाद वो लंदन ब्रिज में अपने आप को खड़ा पाते हैं और अपने फ्रेंड को. तो ये सब आपको याद रखने की चीज़ें हैं कि जर्मनी में जो लोकेशंस हॉफगार्टन और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो क्या सिंबलाइज करता है, ये सब याद रखिएगा. सेकेंडली जो कार्ड्स उन्होंने लिए थे इनको भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से कार्ड्स मैडम सोसोस्ट्रेस ने बताए थे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज important lines to remember.
अब इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। A heap of broken images. If you will see, there will be a line, a heap of broken images. Poet expresses about the lost spiritual value in this modern world. As I said that he was worried about the lost spiritual values. So उन्होंने इस line से mention किया heap of broken images. Now the next line is, I will show you fair in a handful of dust. The poet tells that one day we will become dust when we will die. तो जो आपके एलियट हैं वो कह रहे हैं कि हम सब एक दिन डस्ट बन जाएंगे जब वी विल डाई। और ये इन्होंने कहाँ से रेफरेंस लिया है? इवेनली वॉग यूज दिस वन इन वन ऑफ हिज नॉवेल्स। याद रखिएगा, इवेनली वॉग ने अपनी एक नॉवल में इसको यूज किया था, और जो ये रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया है एंजेलिकन प्रेयर बुक से। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन, एलियट कोट्स जर्मन वर्ड्स। अब मुझे जर्मन तो नहीं आती है, बट स्टिल आई विल रीड इट फॉर यू। फ्रेश विद देयर विंड देयर हिमजू मैं एरिश्काइन वो वेलत तुम। सो इसका मतलब क्या है? फ्रेश विंड ब्लोज होम टू माई आयरिश चाइल्ड वेयर आर यू। यहाँ पे रिचर्ड वैगनर्स जो ये रेफर लिया गया है, ये लिया गया कहाँ से? रिचर्ड वैगनर्स ओपेरा ट्रिस्टन एंड आइसोलेट से लिया गया है, जहाँ पे सेलर स्पीक्स अबाउट अ गर्ल whom he loved। ठीक है, ये याद रखिएगा, important है। I know there was some problem while pronouncing this German words, so don't take them। जो मेन important point है उसको jot down कीजिए, उसको लिखिए, because this can come in your examination। Now, those are pearls that were his eyes। These lines were taken from Shakespeare drama The Tempest। ये लाइन कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर ने अपने ड्रामा द टेम्पेस्ट में मेंशन किया है, और यहाँ पे पोएट किसको रिफर कर रहा है? फिनिकन सेलर को रिफर कर रहा है। Now the last but not the least, oh keep the dog far hence, that's friend to men, or with his nail he will dig it up। ये एलियट ने कहाँ से बोरो किया है? He has borrowed these lines from John Webster's The White Devil से, जो कि 17th सेंचुरी की रिवेंज ट्रेजेडी है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैंने इनको मेंशन कर दिया है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि मैम आप सिर्फ वर्बली बता देती हैं, इनको मेंशन कर दीजिए जिससे कि हम भी अपने नोट्स बना सके। सो आई हैव मेंशन, आई होप यू आर क्लियर विद इट। Still, if you have any queries, you can ask me. So, for today, that is all, and we will meet in the next class. Till then, take care. Thank you.